દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગે. દાદા ભજનની રડ મને લાગે. ભક્તિ રસ માનાવું છે. ભક્તિ રસ માનાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જવું છે. સામે કિનારે મારે જવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારો. જીવન મારું બન્યું અકારો. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થવું છે. દાદા જેવું મારે થવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે.
जय सच्चिदानंद। ए तोरल, Yes. आपको अभी आ गया 5, 6, 7, 8, 9? और 7th वाले में वो 7th वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होती बीच में, बाकी सब नहीं, 5 आ गया। हाँ 5th आ गया। 6 में थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी की बात है। तो ये सब कर देने का अभी। ओके, कल से 5, 6, 7, 8 आपका टर्न है। ओके ओके चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વચન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. श्रेया नंबर 2. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. अनुज. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેવદારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવનવત અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. चिनाई. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ओरल. હે દાતા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલાવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુચુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. वेरी गुड तोरल. श्रेया. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. चिनाई. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ રસમાં દુબળો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. अनुज. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવિત અથવા મૃત્યુ પામેલાનું કોઈનું પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાસ અપરાધ અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. दिव्या. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કાયમ હોવાનું નિમિત્ત બળવાનું પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. जय सच्चिदानंद काका. जय सच्चिदानंद. गायत्री मंत्र बोलाए प्लीज. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं
ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद के नवनीत जी। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को जानने के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। दिव्या अनुज। हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल भी है कच्चे, दिल भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल मालूम है कल क्या बातें किया था? दादा सेपरेशन पेयर। ओह थैंक यू, आप बोले हिंदी में। हे सच्चिदानंद, हे शुद्धात्मा दादा आप अलग हो, दक्षलक है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્चिदानंद। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद, थैंक यू। ओके, कल क्या बातें किया था, किसको मालूम है? आप तो पुत्र बना है।
तो ओरल हाथ ऊंचा करते नहीं करते है, चिनाई करते हैं। श्रेया आप कल थे? हाँ। नवनीत जी आप थे कल? नहीं। आरुष आप थे? याद नहीं है क्या किया था? क्या बोल? ओके श्रेया बोलो। हाँ, ये बोला था कि हमको हमारी वीक सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए और एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। जो भी फ्री टाइम मिले उसमें हमारा वीक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसी बात हुई थी, हमको बहुत याद नहीं है। ताकसीबा सही सच है। हमें पूरी प्लानिंग के साथ जाना है कि हमें कब कौन सा सब्जेक्ट करना है। हमें जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो सब्जेक्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट करना है और हमारा इंटरेस्ट हेल्थ में होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स में भी होना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन हमने कैसे किया था, किसको मालूम है? रिपोर्ट में क्या देखने का था, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा नहीं है, तो भूल गया? हमें 7 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं और वीक सब्जेक्ट को करना है। थैंक यू। लिखा है आपने? लिखा है 7 सब्जेक्ट गोल में? हाँ गोल में लिखा है 7 सब्जेक्ट? हाँ हमने नहीं देखा। मैंने लिखा है। मैंने लिखा है। मैंने 7 अब ऊपर लिखा था। ओ तो मैं मिस कर दिया ऊपर। ओके आरुष आपने लिखा है कितना सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने का है? आपने आरुष नहीं। आपका रिपोर्ट रॉन्ग है, देखो। श्रेया दीदी का, खुशी दीदी का, मोनिका दीदी का, ओके अच्छी तरह से तब लिखो। अपना गोल गोल है ही नहीं। दक्ष आप तो आपका भी वो जरा देखा मिस होता है। आप बीच में से स्टार्ट किया है, टॉप में से नहीं किया है। ओके हाँ। ओके तो ये नोट्स रिवाइज करने का उसका मीनिंग क्या होता है? और जो पढ़ते हैं वो करने का है कि अभी फाइनल एग्जाम के लक्ष्य में रख के एक एक सब्जेक्ट रिवीज पहले से स्टार्ट करने का है? फाइनल एग्जाम के लक्ष्य में रहता है एक एक वेट हम पूरा नहीं बोला। क्या क्या बोला? फाइनल एग्जाम के लक्ष्य में रह के सारे सब्जेक्ट एक एक से स्टार्ट करना है। और डेली नोट्स भी चेक करने का होता है ना? हाँ। ओके तो अभी 7 सब्जेक्ट, आपका कितना सब्जेक्ट है? 7 तो अभी से स्टार्ट किया आपने कल से, तो कितनी दफा 3 महीने में रिवीजन हो सकता है? अभी तो 61 टाइम रिवीजन तो हो सकता है इजीली। दैट्स ऑल? वन यानी टाइम कि में रिवीजन करेगा तो बाद में भूल जाएगा। यानी कि अगर हम रोज हम रिवीजन करें तो 61 डेज में सारे सब्जेक्ट एक एक बार कर तो 61 टाइम रिवीजन कर सकते हैं। श्रेया आपको कितना टाइम लगेगा, कितनी दफा आप रिवाइज कर सकते हैं? 30 टाइम्स, 30 to 40 टाइम्स, 40 टाइम्स 40 टाइम्स कर सकती हूँ मैं। नहीं अभी से आप स्टार्ट किया ना, आपका कितना सब्जेक्ट है? 7 तो अभी से स्टार्ट कर। आपको एग्जाम हाफ ईयरली है कि फुल ईयर का एग्जाम है? फुल ईयर का ना? हाँ तो आपको तो अभी वो अगस्त जुलाई में पढ़ा था उससे स्टार्ट करने का है ना, राइट? हाँ तो अभी स्टार्ट करेगा तो कितने, 2 दफा, 3 दफा, 1 दफा? इतक सिवा 1 दफा बोला आपको। जरा सोचने का। ओके दैट इज द की थिंग के
अभी डेली का तो रिवीजन करने का है, कल क्या होएगा वो करने का है, वो बाद में टाइम मिल के स्टार्ट ईच सब्जेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके. खुशी अहमदाबाद, खुशी मिस खुशी, आप क्या कितनी दफा आप कर सकते? आपको एग्जाम हाफ ईयरली है कि पूरा ईयर का है? पूरा एनुअल है. ओके. तो और जब मई जून में पढ़ा था वो सब पहले आएगा ना. ओके. आप कितनी दफा कर सकते हैं रिवीजन? मैं 82 टाइम्स कर सकती हूँ. ओके, वेरी गुड. नवनीत दीदी? 1 time or 2 times. 2 times. दक्ष? हाँ, मैं डेली 1 टाइम कर सकता हूँ. डेली कैसे कर सकता है? मई जून जुलाई में पढ़ा वो करने का है, और जब मैथ करते हैं तो एटलीस्ट कितना सम मैथ करने का, तो कितना सम करेंगे रिवीजन में प्रिया? तो मई जून में किया था उसका 10 सम. 10. प्रिया? 50-60 sums. ओह, वेरी गुड. सोरल? हाँ, आपको रिवीजन स्टार्ट किया कि नहीं करने का है? वो आपका हाफ ईयरली सेम स्कूल में होता था, ईयरली होता है ना, वो जो हाँ. पहले दिन से पढ़ा था कि लास्ट दिन तक आ सकते हैं ना. ओके. Yes. So you have to start revising that as you get time. Okay. Yeah. कि सब याद है? वो मई जून में क्या पढ़ा था सब याद है? इसमें सब याद है? और स्कूल कब स्टार्ट हुए? मई में स्टार्ट होते है कि अगस्त में? जून? हाँ, याद. श्रेया, स्कूल कब स्टार्ट हुई थी? जून में होता है, जून में. जून में. ओके. तो जून के जुलाई में क्या पढ़ा था ये सब याद है? हाँ. याद है? Yes. ये तो एक्सेप्शनल है दीपक दादा, कसम काका. वेरी गुड. तो वो सब रिवाइज करने का है. ओके. ओके दीपक दादा जी. जी सच्चिदानंद, आपको आपके एग्जाम की डेट पता है? यस. हाँ, हाँ. पक्का पता है कि ये दिस इज द डेट? तो आज गिव मी वन एग्जांपल. चलो तोरल, आपका कभी है एग्जाम? अप्रैल के टाइम है और डेट मेरे को पता नहीं. मैंने कहा डेट पता है वो बोलो. हाँ, डेट नहीं पता? किसको पता है? डेट है, आई है डेट? हाँ बोलो मोनिका. April 6 स्टार्ट हो रहा है. April 6. उसका तो बोर्ड एग्जाम होगा. That's fine, whatever is the exam. Yeah. April 6 है ना? मेरा जनवरी 16 में. ओके. तो आरुष का आ गया. और जनवरी 16 में फाइनल कैसे होता है? फाइनल नहीं, पीटी. मैं फाइनल की बात करता हूँ. फाइनल एग्जाम की बात करते हैं अभी. 2 मार्च. देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया कि कैसे करना है. अभी समझो जिसका डेट है अभी 1 अप्रैल से, मैं एग्जाम्पल देता हूँ. 1 अप्रैल से, चलो ये 6 अप्रैल किसका है? मोनिका आपका है ना? हाँ. तो अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी. अभी जनवरी का कितने दिन बाकी है? 20 days, like, right? फरवरी के 28 days. Is it a leap year? No year. No. It's not a leap year. Regular. And March is again 31st. So, or April के 5 days, right? Yeah. So leave the 5 days. Leave the 5 days. So you have like 9, 4, 5, 6, 7, 79 days. वो बैक कैलकुलेशन करना है 79 days. और 79 days में आपको एक कितनी बार रिवाइज करना चाहिए? I believe you must revise 2 times at least.
तो उस तरह से इफ यू प्लान तो 40 डेज में आपको करना पड़ेगा कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस, वन टाइम। समझ में आया? You have 79, so like 80 days. हाँ. समझ में आया? If your exam is starting on 6th of April, from today, so from tomorrow, आपको 80 days मिलते हैं. हाँ. So you plan like at least you will revise 2 times. और 40 days में आपको आपका टाइम टेबल बनाओ कि जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। कीप टाइम, अभी तो कुछ सिलेबस बाकी होगा ना, हाँ है। फिनिश हो गया, so that must be like 10 or 15% only अभी तो। What is remaining is 10 to 15%। वो डेली बेसिस पर उसको रखने का है, जो डेली रिविजन्स बोलते हैं ना उसके लिए। और एग्जाम के लिए अच्छे से प्लान करें तो आप 40 डेज में कैसे यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल ड्यूरिंग द डे, और उसका प्लान करके अप्रोक्सीमेट प्लानिंग करके आपको सब्जेक्ट में डिवाइड कर दो। वो रिवीजन एवरी डे one subject. Yeah. You have how many? 7 subjects? 5. You have 5 subjects. So 5 subjects go, and you have 7 days in a week. Yeah. And no, okay. You have 40 days, na? 40 days. So 8 into 5. 8 days में आपको एक सब्जेक्ट करना है। और जैसे नाउ इमेजिन आपको मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, तो वर्कआउट अकॉर्डिंगली। साइंस के लिए कम समय चाहिए तो वर्कआउट अकॉर्डिंगली। तो पहले नंबर ऑफ आवर्स को आइडेंटिफाई करो, प्लान करो, एंड देन मेक योर टाइम टेबल। बट इन दोस 40 days यू मस्ट फिनिश योर रिविजन वन टाइम। सो 40 days के लिए आपको 20 एंड February 20 तारीख तक आपको फिनिश करना चाहिए, because you have 20 days in January and 28 days of February. So by 20th February you must be able to finish your revision one time. समझ में आया? Yeah. ऐसा प्लान करना है, वो आप कर सकते हैं शांति से, और अच्छे से प्लान करके उसको अच्छे से रिवाइज करो। और उसमें ही अगर आपको कुछ पता चलता है कि सम वीकनेस इज देयर, उसको क्लैरिफाई करो जो चाहिए वो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इसमें जरा और भी ज्यादा समय चाहिए, तो नेक्स्ट 40 days में रीप्लान। समझ में आया? फर्स्ट 40 days में आप रेगुलर भी प्लानिंग करेंगे तो नेक्स्ट 40 days के लिए प्लानिंग का आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना पड़ेगा। समझ में आया? एंड इट शुड वर्क आउट वेरी वेल। एंड लास्ट 5 days जो आपने ओपन रखा है, वो दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट एग्जाम होगी ना, उसके ऊपर फोकस करना है। समझ में आया? सो प्लान लाइक दिस, सब लोग अपनी तरह से प्लानिंग रखना है। और ये प्लानिंग में नेवर मिस योर डेली एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, because this exercise will keep you physically, mentally, psychologically, emotionally fit. और हमारे जो सत साधन है उसको अकॉर्डिंगली प्लान करो टाइम टेबल में। समझ में आया? It will work out very well. मैं दूसरों बच्चों को नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके लिए बोलूंगा, because you are in 10th standard, important. ख्याल में आया? And don't worry, when your planning is perfect, your results will be perfect. तो आपका level of confidence भी बढ़ेगा। But मुझे 40 days में सैटरडे और संडे कुछ और एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या होता है? 40 days आपने जो कहा सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, बट मुझे सैटरडे और संडे एवरी वीक में ज्यादा टाइम मिलता है। That's what, तो आपको टाइमिंग प्लान करना है ना। You have to make your own timetable for Saturday and Sunday, which would be different from the weekdays. Yeah.
Yeah, you may not be able to do something in weekdays, तो cover करने का है weekend में ना. कभी तो homework जाती होगा, कुछ होगा ना. You cannot maintain that. So you cover up in Saturday, Sunday, ना. समझ में आया? हाँ. It will be fun planning for your own self, Yeah. for your own task. Yeah. और जैसे करते जाएंगे आपको पता भी चलेगा कि क्या, how do you stand, where do you stand, और उसके लिए जो मॉडिफाई करना है वो करते रहने का है. Very important. जैसे Tension नहीं ये लेने का. प्लान, No tension. टेंशन नहीं लेने का है. You prepare correctly, rightly, sincerely, your hard work will pay you. Yeah, and modify accordingly. हाँ, समझ गए? सब लोग अपनी तरह से उसका टाइम टेबल बना देना है. एंड टेंशन नहीं लेना है. यू आर ऑल स्मार्ट किड्स, यू आर नॉट डम गाइस. वो तो सही है. वो जो सब्जेक्ट में आप वीक है उसको अच्छे से फोकस करके थोड़ा समय ज्यादा देना है. बट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ, यानी एक्सरसाइज, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज योर सत्संग. वो पढ़ाई के बीच में आता नहीं है. सो वट एवर यू टू स्पेंड हाफ एन आवर इन द सत्संग, डोंट मिस दैट हाफ एन आवर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसमें एक शब्द भी आपको अंदर स्पर्श कर जाता है, क्लिक कर जाता है, दैट विल रेजुविनेट यू, रिवाइव यू. आपको दोबारा शक्ति मिल जाएगी. अगर कहीं आप रुक गए हैं ना तो. समझ गए? ओके, सब ठीक है. और कल जब कभी ऐसे होता है कि जो आप पढ़ते तो याद नहीं रहता है, तो कल प्रदीप दादा ने क्या बोला था, कैसे पक्का करने का, किसको याद है? हमें पहले 2-3 बार रीड करना है और बाद में हमें खुद लिखना है बिना देखे, और बाद में चेक करना है कि हमने कितना मिस किया है और हमें कितना याद है. वेरी गुड. सो मैंने जैसे पढ़ा था. ओके, वेरी गुड. सो जब ये सब मुसीबत आएगा कि वो कभी याद नहीं रहता है, तो दादा का नाम लेके ये करेंगे तो सब पक्का हो जाएगा. ओके, जय सच्चिदानंद. हसमुख काका, आपने सब सुना. अभी फाइनल एग्जाम की तैयारी का थोड़ा प्लानिंग चल रहा है. हाँ, तो दीपक आनंद जी ने आज पूरा बता दिया कि कैसे कैसे उसको जो भी कक्षा में पढ़ते हो उसमें थोड़ा प्लानिंग करने का, रिवीजन करने का है. और उन्होंने जो खास बात बताई है कि हमारे हेल्थ की एक तो केयर करने की है, और दूसरी बात कि हमें जो सत्साधन और ये सत्संग मिला है उसको मिस नहीं करने का है, क्योंकि वो दोनों आपको, वो जो भी आप पढ़ते हो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे. बरोबर. तो ये दोनों चीज आपको संभाल के करने की है, एक हेल्थ के बारे में और एक सत्संग के बारे में. ये दोनों अगर आप मिस नहीं करोगे तो का पूरा आपका एग्जाम का जो टाइम है वो आराम से, बिना टेंशन के, वो आप आराम से उसको पार कर पाओगे. और उन्होंने जो बोला है कि जो रिवीजन का प्लानिंग करने का है, तो आपको जो भी पढ़ते हो वो हिसाब से आप अपना रिवीजन का थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करके उसको आप चालू करो. वो आप चालू करोगे तो उसके बारे में आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ आइडिया मिलते हैं. क्या प्रॉब्लम आता है आपके पास, तो एक सॉल्यूशन के लिए है. अगर आज सुबह में प्रॉब्लम आया तो आप शाम को भी आप पूछ सकते हो सत्संग में, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आया, मतलब उसका सॉल्यूशन तुरंत ही मिल जाएगा. बरोबर. लेकिन एक बार आप वो जो भी आपने नक्की किया है उस पर आप चलना चालू करेंगे तो धीरे धीरे कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो शाम के टाइम आप पूछ सकते हो कि भाई मेरे को आज मैंने ये किया तो मेरे को इतना प्रॉब्लम आता है. तो उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत का तुरंत ही मिलता जाएगा. कोई ना कोई आपका पुत्र है या दादा की कोई ऐसी बात है जो आपको जरूरत वो टाइम पे हेल्प करती रहेगी. तो आप चलना चालू करो दादा का नाम लेके, और एग्जाम है तो एग्जाम को भी आप अच्छी तरह से आराम से क्लियर कर पाओगे. जय सच्चिदानंद. ओके, सबको यह मालूम पड़ गया प्लानिंग का. डोंट हाइड योर वीकनेस. वो वीकनेस का सॉल्यूशन लाओ. डैडी मम्मी को पूछो, यहाँ पूछो, सत्संग में पूछो. ठीक है? जय सच्चिदानंद. ओके, फाइनल थिंग, आज टीवी किसने देखा था? अव्यय.
आपने रिपोर्ट तो नहीं लिखा, टीवी देखा था? मैंने रिपोर्ट लिखा, मैंने टीवी देखा था। ओके, रिपीट नहीं दे भेजा और टीवी देखा था। और आरुष? मार्गिन ने देखा था। मार्गी क्या आपका एक ए स्टूडेंट है? नहीं, उसने हाथ ऊंचा किया। है? ओ मार्गिन, हाँ आप ए स्टूडेंट है? हाँ। सब में 100% आता है सब सब्जेक्ट में? नो। तो कैसे ए स्टूडेंट हो सकता है? देखो, ये टीवी बंद करो 3 मार्च के लिए, और वेकेशन में जितना टीवी देखना है वो देखने का। ओके, सब ये टीवी देखते हैं ना, तो वो ए स्टूडेंट होता है, ए माइनस तुरंत हो जाएगा। ओके दक्ष, हाँ। बोलो। मैंने 5 मिनट मोबाइल चलाया था। 5 मिनट क्या किया था? मोबाइल चलाया था। बाइक चलाया था? मोबाइल मोबाइल क्यों? उसमें क्या देखा था क्या? लेकिन शॉर्ट्स। हाँ, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स क्या होता है? छोटे वीडियो टाइप। तो उसमें क्या देखा था? हाँ, क्या देखा था क्या? मुझे बताओ तो सही। शॉर्ट देखा, लेकिन उसमें क्या देखा क्या? हाँ, वीडियो। वो फनी फनी वीडियोज आते हैं वो? नहीं। फिर भूल गया दीपक दादा। हाँ कार के बारे में। हाँ, कार के बारे में। आपको कार की क्या जरूरत है अभी? देखो बेटे, यहाँ एक बात समझना है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। अभी आपको जो फोकस करना है, अगर आप हाफ एन आवर टीवी देखते हैं तो मैं बोलूंगा हाफ एन आवर आप खेलो, एनी फिजिकल गेम, नॉट वीडियो गेम। समझ में आया? हाँ। वो हेल्पफुल है। और आप टीवी वीडियो फोन देखेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा। अभी आपको दिमाग खराब करना है या फिजिकली एंड मेंटली फिट होना है? फिजिकली एंड मेंटली फिट होना है। हाँ, तो वो वेकेशन में देखो ना, वेकेशन में कौन मना करेगा? 24 आवर देखना। समझ में आया? हाँ। अभी मत देखो अभी, क्योंकि उससे हमारी हमारी ये जो चित्त की शक्ति है ना, मन की शक्ति है ना, वो टूट जाती है। जैसे कि आप वो वीडियो देख के पढ़ने बैठेंगे तो वीडियो का विचार नहीं आएगा आपको? आएगा। वो क्या काम का है? लेकिन आप खेलेंगे तो उसका विचार नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ। तो ऐसा करना। क्या? गलती करोगे कि नहीं करोगे अभी? नहीं करूंगा। हाँ, वो वेकेशन में देखो ना, वेकेशन में आराम से देखना। हाँ, वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। अव्यय, अभी आपने किया रिपोर्ट में क्या लिखा है? कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कोई गोल तो है नहीं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिए यस 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 को क्या क्या मीनिंग होता है? हाँ, और आप टीवी देखते हैं ओ क्या था? सूर्य नमस्कार नहीं किया था। योगा किया था, सुपर ब्रेन योगा। और आप टीवी देखते हो, और ये रिपोर्ट तो देखो प्लीज। वो देखो सूर्या, मोनिका, करिश्मा, हिताक्षी कैसे लिखते हैं। ओके आरुष,
आप जरा वो करके कल अच्छा बन लिखना और कमिटमेंट तो बता। यस यस का मीनिंग क्या होता है हमको मालूम नहीं। नो का मीनिंग क्या होता है? एवरीथिंग हैज बी वेरी स्पेसिफिक। नंबर लिखने का। और आप लेट आते, क्यों लेट आते सत्संग में? हाँ? अच्छा सत्संग नहीं लगता तो नहीं आने का। मम्मी को बोल देने का कि हम नहीं जाएगा, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको कुछ सीखने में नहीं मिलता है, टाइम वेस्ट होता है, मेरा टीवी रह जाता है। मम्मी को बोल देने का चलेगा? नहीं तो? अच्छा लगता है। तो कहाँ तक कहाँ गए थे? वो मैं खेलने गया था तो गाड़ी नहीं देखा। तो मम्मी को बोल देने का है कि मुझे ये टाइम में बुला देने का। खेलने को ना नहीं बोलते हैं, लेकिन वो टाइम को रखना है ना। और अभी देखो आप समझो आपके सबके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आया तो आपको खुशी होगी। हाँ लेकिन अगर रिजल्ट बिगड़ा तो अच्छा सारा साल, पूरा साल आपका बिगड़ गया। अभी आपको पूरा साल बिगाड़ना है कि रिजल्ट अच्छा ला के मजा करना है, वो आप सोचो। समझ में आया? के मजा और करना है। आप लोग बुद्धू नहीं है, आपको लोग बुद्धू नहीं है, वेरी स्मार्ट, बट यू हैव टू यूज योर टाइम स्मार्टली। समझ में आया? हाँ। यही सच्चिदानंद। Avya, you have to be serious if you want to be ये प्रार्थना करते हैं, if you want to be like that, okay? Okay, जय सच्चे खुशी। बोलो क्या बोलने का खुशी? आप हाँ, तो लेट जय सच्चिदानंद। आप तो लेट आए आज, क्यों? हाँ, आज मैं बाहर गई थी। ओके हाँ, बोलो क्या जय सच्चिदानंद। कल मेरी एग्जाम है तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छा लिख पाऊँ। अरे कल एग्जाम है तो आज बाहर कैसे गए आप? प्रिपेयर हो गया है? हाँ, तो ठीक है। कौन सी एग्जाम है कल? गुजराती की। और ये कौन सी एग्जाम है? गुजराती की नहीं कौन सी, वीकली यानी विच? टेस्ट। हाँ, फाइनल तो अभी नहीं होगी ना? नहीं, 3rd मंथ में है, अच्छा, ये थर्ड मार्च में। थर्ड मिड टर्म बोलते हैं, थर्ड टर्म। ओके, बहुत आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद।